Okay, everyone, let's continue with the topic. So, okay. So the first point under limitation of accounting is based on the accounting concepts and conventions. Okay. What is accounting concepts and conventions? पहले हम ये समझ लेते हैं. So accounting concepts and conventions, it says that anyone or any set of principle who on which the accounts are going to be made based on such principles. So basically जब हम बात करते हैं concepts की, so concepts are basically the assumptions and conventions are the traditions. तो जिस तरह से जो practices, जो principles follow करके आज तक accounts बनाए गए हैं, जो accountant या जो accountancy अभी आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी उन्हीं सारे principles को ध्यान में रखकर accounts को बनाया जाता है. So concepts and conventions, when we see or when we say, it means the rules and regulations or the rules and format which are already existing, which can be used for the purpose of making an account, is required to be followed for the preparation of account by the accountant. Now the point here is कि accounting concepts and conventions जब आप follow करते हैं, तो there are certain principles which does not help you in revealing the true result. And what does we mean by true result? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास जो स्टॉक है उसको आप कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो उसकी कॉस्ट है, जो उसको खरीदने में आपने कॉस्ट इनकर की है वो, या फिर मार्केट प्राइस जो इस वक्त मार्केट में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, whichever is less is to be shown at that value. तो ये गलत है, क्योंकि आप जो आपके पास स्टॉक आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बैलेंस शीट में, उसकी जो वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है उसका अमाउंट वो नहीं है जो इस वक्त एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. तो आप वो अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि कम है, दैट इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. So which is basically saying that we are following the principle of conservatism, जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हम अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने की कोशिश करते हैं. So if we are doing it, so that is actually not helping us to show the true picture to the people who are interested in knowing our financial statements, who are interested in using our financial statements, right? So this first point is basically referring to that because we are using the principle which has been given by the body, and which is that body, दैट इज जैसे अभी मैंने बताया था कि अकाउंट्स बनाने के लिए हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं विच आर गिवन बाय द रेगुलेटरी बॉडी. तो अब यहाँ पर जो आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं वो कुछ सही रिजल्ट्स दिखाने में आपको हेल्प नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वन ऑफ द लिमिटेशन. सिमिलरली आपको जो आपके फिक्स्ड एसेट्स भी आप अपने बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, वो शो करेंगे आप उसकी परचेज प्राइस पे. मतलब जब भी आपने उस एसेट को परचेज किया था, तो जो भी उसकी परचेज प्राइस थी, उस प्राइस पे आपका एसेट रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस शीट के अंदर. सो बेसिकली अगेन the value of asset which is getting reflected in the balance sheet is not the correct balance, right? जो आज के टाइम पे बैलेंस आपका यूज होता एग्जिस्ट करता है, वो बैलेंस आप बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करते. सो बेसिकली हमारा एसेट का कोई भी बैलेंस जो मैंने बैलेंस शीट में दिखाया है, वो इस समय करंट सिनेरियो में आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखता है. This is we are doing because we are following the principle of historical cost. So again जो भी मेरा फाइनेंशियल पोजीशन जो दिखेगी बैलेंस शीट को यूज करके, वो फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं दिख सकती है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग माय एसेट्स इन द बैलेंस शीट, राइट? सो दिस इज acting as a limitation, as one of the limitation for accounting. Second point that we have here is based on personal judgment. Okay, based on personal judgment. अब accounts के लिए already आपको बताया गया है कि there are these set of principles which are required to be used for the purpose of making account. पर यहाँ पे भी एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि जब आप अपने प्रिंसिपल्स के अंदर
बच्चों अकाउंटेंट्स को ये ऑप्शन देते हैं कि वो उसको अप्लाई करें, तो वो प्रिंसिपल्स भी हमको नंबर ऑफ मेथड्स बताते हैं किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास हमको असेट को डेप्रिशिएट करना है ना। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जो आप परचेज करते हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो आपकी इस वक्त वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो हर साल आपकी एक कंटिन्यूअस परसेंटेज के साथ डिक्रीज करेगी। दैट मींस डेप्रिसिएशन मींस continuous decrease in the value of the fixed assets, right? तो ये जो आपका फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगी कि अलग अलग तरीके होते हैं, सिमिलरली यहाँ अकाउंट्स में भी हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट में आप अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, राइट, टू शोकेस योर अकाउंट। तो अगर आपने एक मेथड को यूज करके अकाउंट बनाया, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो वेरी करेगा जब आप दूसरे किसी मेथड को यूज करके अकाउंट्स बनाएंगे उससे, राइट। सो बेसिकली आपने अकाउंटेंट ने अपने पर्सनल जजमेंट से डिसाइड किया कि उसको कौन सा मेथड यूज करके अकाउंट्स बनाने हैं, मगर वो आपके रिजल्ट को इफेक्ट करता है, बिकॉज द अकाउंट्स विच इज प्रिपेयर्ड using one method is going to show a little different result from the accounts which is prepared using the another method। और ये दोनों ही मेथड आपके यूज किए जा सकते हैं, मतलब ये दोनों मेथड का ऑप्शन एक अकाउंटेंट के पास अवेलेबल होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज द पर्सनल जजमेंट और द डिसीजन ऑफ द अकाउंटेंट दैट on which method he wants to make an account and present it to the parties interested. And so because of the choice or the availability of choices that are available to the accountant, it also creates a limitation for the users, because आपको मैंने जैसे अभी अभी बताया कि आप एक मेथड को यूज करके अगर अकाउंट्स बनाएंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा, दूसरे मेथड को यूज करके बनाएंगे उसी अकाउंट्स को तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट अपना जो लिमिटेशन है दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि हिस्ट्री वर्ड आ रहा है इसके अंदर, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस एनी असेट व्हिच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। और वो एसेट हमारे हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट की, मतलब वो प्रॉपर्टी जो मैंने बिजनेस करने के लिए एक्वायर की थी। इफ वी आर शोइंग इट in our balance sheet, we have to show it at the value at which we have purchased it। तो अगर आपने किसी एसेट को आज से 10 साल पहले खरीदा था 1 लाख रुपीस में और आज के टाइम पर उसकी वैल्यू 20 लाख रुपीस रिफ्लेक्ट कर रही है मार्केट में, सो इट डज नॉट मैटर, बिकॉज आपका एसेट आज भी उसी 1 लाख रुपए पे ही आपका रिफ्लेक्ट होगा माइनस डेप्रिसिएशन which is going to be charged every year। So basically historical cost means that every asset that has been purchased by the organization for the purpose of doing or performing the operations of the business is going to be reflected at its original cost। Original cost means the price at which it was purchased minus depreciation which will be charged every year, right? So अभी आपके इतने 10 सालों के अंदर क्या प्राइसेस में फर्क आया, उस एसेट की आज की वैल्यू क्या है मार्केट में, ये सब आपके लिए इररिलेवेंट है। और क्योंकि ये इररिलेवेंट है और आप कंसिडर नहीं करते इसे अकाउंटिंग में, इसीलिए जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट हो रही है बैलेंस शीट के थ्रू वो सही रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और ये हमारा हुआ तीसरा पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का। ओके, let me move further and let's move to the fourth point of limitation, and that is lacks qualitative information। okay, मैंने आपको पहले बताया था that we have got we take care of only financial transactions, that means only money related transaction in our accounts। So that means
we are not taking care of any qualitative aspect of the accounts. That means अगर मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय है जो ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है, ट्रस्टवर्दी है, हार्ड वर्किंग है, उसकी किसी भी क्वालिटी को आप एज सच अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मगर उसके ये सब क्वालिटी को पोजेस करने की वजह से जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, सिर्फ वो ही रिकॉर्ड किया जाता है. सो बेसिकली एवरीथिंग which is qualitative in nature, that means जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, उस किसी भी एस्पेक्ट को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. एंड दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ लिमिटेशन. क्योंकि अगर आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते तो आपको पता होता कि प्रॉफिट अर्न करने के पीछे क्या रीजंस थे और प्रॉफिट नहीं होने के पीछे भी क्या रीजन थे. सो प्रोबेबली अकाउंट्स वुड हैव डिस्क्लोज्ड ऑल ऑफ दैट, मगर ऐसा नहीं है, इसीलिए ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन बन जाती है. ओके, फिफ्थ पॉइंट. Any doubts to anybody till fourth point? Please write it down in the chat box. If you've got any doubts till now, please write it down in the chat box. And if you'll not have any doubts, let's move further to point number 5. Okay, so I've not received any doubt as of now. So let's move on to the next point, which is the next limitation of accounting suffers from window dressing. So suffers from window dressing says that accounts में हम ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट दिखाने के लिए या अपनी इनकम को ज़्यादा दिखाने के लिए या कभी उसे कम दिखाने के लिए we generally विंडो ड्रेस द अकाउंट. विंडो ड्रेस का मतलब होता है कि आप उसको उसी तरह से दिखाएंगे जिससे कि आपका पर्पस सॉल्व हो रहा हो. दैट मीन्स अगर मुझे लोन चाहिए बैंक से तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिखने चाहिए? वो कुछ ऐसे दिखने चाहिए कि मुझे फंड्स प्रोवाइड बैंक आराम से कर दे. सो फॉर दैट थिंग, इफ आई एम शोइंग माई इनकम मोर or if I am reducing my expenses to some extent, this is what I am doing right now is called window dressing. That means anything which is done purposefully so as to make the account suit our requirement. That means requirement of the organization. So that is called window dressing. And window dressing means basically you are trying to manipulate the accounts that is not existing in reality. So something that you are doing on the accounts in terms of changing the figures of the accounts or the figures which are shown in your financial statement is basically not correct, and that is why it is treated as the disadvantage of accounting. Okay, let's move on to the next point. So the next point is depicts unrealistic information. Depicts unrealistic information means that anything that you are reflecting in your account, if you are doing any kind of window dressing, it will not reflect the true income position of the organization. Similarly, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो भी आपके एसेट्स हैं वो सब रिफ्लेक्ट होते हैं, फिक्स एसेट्स आपके रिफ्लेक्ट होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जिस प्राइस पे आपने उनको परचेज किया था उस प्राइस पे. So you are not showing it at a price which is existing right now in the market. तो जो आपके assets का balance आज दिख रहा है वो actually आपके लिए beneficial नहीं है, right? So since it is suffering from certain limitations, and because of that the financial position of the organization or the income position of the organization is not going to depict the true picture, right? The correct information is not going to be depicted because of the usage of principles such as historical cost or maybe the conservatism. यहाँ पे एक और लिखा हुआ है principle, that is going concern basis.
मैं आपको अभी एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ। गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, सो वी कंसिडर दैट बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर, राइट। और इसी फैक्ट, इसी सोच के साथ हम बिजनेस करते हैं। और ये सोच क्योंकि हमारी है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, इसीलिए हम बिजनेस के रिजल्ट्स को एक साल में एक बार असेस करते हैं। और इसी वजह से हमारा जो अप्रोच होता है अकाउंट्स को बनाने का, वो भी हम कंजर्वेटिव रखते हैं, बिकॉज वी अज्यूम that the business has to go on forever, so we need to play very safe. And for that reason, the accounts, the information which we are depicting in accounts is not actually going to reflect the true information to the parties. And so the information which is getting reflected or getting communicated to the parties interested is not actually correct and not relevant in the present scenario. So this is the sixth point of limitation. Now the seventh point of limitation is saying not suitable for forecasting. Okay, not suitable for forecasting. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो भी अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, वो आपकी मैनिपुलेशंस उसमें होती आपके पास करते हैं, मतलब अकाउंटेंट मैनिपुलेशंस करता है. he has an he has an option to change the method of making an account, or there are certain principles which are existing such as going concern, conservative, historical cost, जिसकी वजह से accounts जो इंफॉर्मेशन डिपिक्ट कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो करेक्ट नहीं है. अब आप मुझे बताइए कि जब आपकी जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ही करेक्ट इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, so how can we trust that we can actually make use of that data and can make a plan for future? That means जब हम फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, that means we are trying to plan for the future. बट अगर मेरा जो इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट में वो ही सही नहीं है, सो हाउ एम आई गोइंग टू बेस माय फ्यूचर प्लान ऑन दैट misleading data? So again, that acts as the disadvantage of accounting. So anything which you are reflecting in account, if it is not correct, if it is not relevant, if it is manipulated or window dressed, so in that case we cannot make our make the base of that data and can plan for and can make a plan for future scenario. So that is an important point to understand, that these are certain limitations with which an accounting suffers, right? Okay, I'm little surprised that why am I not receiving any doubt question from the points that we have just discussed. Okay, is there anything wrong regarding the chat segment, as in I are you not able to write anything in the chat box, or is it not getting conveyed to me? Okay, let me just check. Okay, yes, we have received doubts, so let me just go through it. Okay, so probably this chat box is not coming up on that screen, so let's take up the doubts. So the first doubt is depreciation. Ma'am, can you please explain depreciation again? Okay, depreciation का मतलब होता है कि अभी okay, before moving on to the depreciation, let me tell you हम already limitation के सातों points कर चुके हैं. Anybody having any other doubt, please please write it down in the chat box so that I can take care of your doubts. Okay. Before moving on with the doubt related to the content, let me take care of some people who are added in the list but are not belonging to the class, or probably they have not entered their correct name. So just give me a minute. Let me just check the list again. Okay. Just let me just find it out. ओके बच्चे, रेडमी अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. रेडमी बच्चे अपना नाम रीनेम कीजिए, अदरवाइज आई वुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव यू. आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग the points or the instructions which are given to you, then I would be required to take up the action. Okay. Just give me a second.
Okay, there's a request to all of you, and I hope that you are going to behave like a responsible classmate. And that request is that anybody who is entering into our class and you know that he is not a part of a class, please let me know in the chat box, right? So that I can take the action for that person, because I still don't know who all are the part of your class, because although I have the list, so I can always refer to that list, but that will again take some time, and it will lead to the usage of the class time that we are having. So if anybody who is attending the class which you can figure out is not the part from your class, please let me know in the chat box. Okay, thank you. Okay, let's continue with the doubts now. So the first doubt is depreciation ka point. So let me explain it to you again. Depreciation ka point hota hai, or depreciation कहता है कि anyone who any all the fixed assets which are getting represented in our balance sheet. तो मैंने कल भी बताया था कि fixed assets कौन से होते हैं. Fixed assets वो होते हैं हमारे जो कि business purchase करता है for the purpose of using it in the long run, right? So if any business asset which is existing, it is not going to remain at the same value for all the time. So it is required to be depreciated. So depreciation का मतलब है reduction or continuous reduction in the value of the fixed asset because of usage, because of passage of time, because of obsolescence, that means getting obsolete, or because of wear and tear. So any reason because of which the value of asset, fixed asset, is going to reduce is called depreciation. तो जब हम अपने assets को, fixed assets को show करते हैं balance sheet में, so we always write fixed asset minus depreciation which is getting charged on that asset, और जो balance figure होगा वो reflect होगा आपके balance sheet के outer column में, external column में, right? तो मैंने जो बताया आपको depreciation, उसका एक basic example भी देती हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आए. Okay, like we see कि अगर मैंने इस साल एक मान लेते हैं एक बाइक ली, वो बाइक आई एम नॉट यूजिंग, I've purchased it and I have parked it in my garage, right? अब आप उसको एक साल बाद बेचते हैं. जब आपने बाइक ली थी एक साल पहले, उसकी कीमत थी लगभग 60,000 रुपीज. आज आप एक साल बाद उसको बेचेंगे, आपने उसको बिल्कुल नहीं चलाया है, क्या आपको लगता है कि वो वही 60,000 की बिकेगी? No, because even if you have not used it, the technology has upgraded itself. और इसीलिए एक साल के बाद उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो चुकी है, उसमें ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम वियर एंड टियर हुआ है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी. तो इसी वजह से जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. एंड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एक रेट असाइन किया जाता है हर तरह के एसेट को, और वो रेट हमको देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि जो हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो हमको बताता है कि किस तरह के फिक्स्ड एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, यानी कि किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, राइट? So this was the first doubt of depreciation. Then let's move on to the next doubt. Ma'am, please explain the first point and third point. Okay, let me see which was the first point and then the third point. Okay, so the first point was based on accounting concepts and conventions. Okay, accounting concepts and conventions, मैंने बताया कि concepts का मतलब होता है आपके assumptions, और assumptions आपको पता है ना कि हर theory के पीछे एक assumption होता है, और वो assumption क्या होता है कि जब ये theory हम ये prove करते हैं कि ये exist करती है और ये हमको यही result deliver करेगी, so we always make certain assumptions कि ये सारे parameters हमारे constant होने चाहिए. ये सब चीजें आपने साइंस में पढ़ी होंगी, राइट? सो सिमिलरली इन अकाउंटिंग आल्सो वी अज्यूम सर्टेन थिंग्स कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये पैरामीटर्स जो हैं, ये एग्जिस्ट करने चाहिए. सो दे आर कॉल्ड आर कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर द ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है? वो ओल्ड कस्टम्स जो हम फॉलो करते आए हैं पहले से कई सालों से, और जो हमको सही रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो जो हमको सही रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता आ रहा है उसको हम अपना कस्टम बना लेते हैं, एंड दे आर कॉमनली नोन एज कन्वेंशंस, राइट? तो अकाउंट्स बनाए जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यानी कि कुछ अजम्पशंस और कुछ कन्वेंशंस मतलब कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करके. तो
उसके बेसिस पे जब हम अपना अकाउंट्स बनाते हैं, so based on that we prepare our financial statement, that is trading, P&L and balance sheet. So now there are certain concepts and conventions which says that the accounts are to be shown at using conservatism principle. Conservatism principle कहता है कि आपका जो वैल्यू है स्टॉक की, जो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मींस वो असेट जिसमें, वो करंट असेट जिसमें हम डील कर रहे हैं. सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज possessing that stock and this is meant for the purpose of resale, it is important that we understand that at what price are we going to show that stock in our balance sheet. So जो भी मेरे पास स्टॉक बचा होगा जिसको मैं बैलेंस शीट में दिखाती हूँ एज अ क्लोजिंग स्टॉक, सो इट इज टू बी शोन एट अ प्राइस विच इज मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस. मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस का मतलब है कि उस समय मार्केट में आपके क्लोजिंग स्टॉक, आपके स्टॉक की क्या वैल्यू थी, वो वैल्यू, या फिर कितने में आपने उस स्टॉक को क्रिएट किया है, मैन्युफैक्चर किया है या परचेज किया है, वो वैल्यू. So either of the cost, whichever is less, is going to be reflected in our closing stock using conservatism principle. So conservatism principle says that since we are going to function, and since the company is going on for a long period of time and it will continue its operation for a long period of time, it is very important that we take care of the losses that we are going to incur or we may incur, and also the profits that we may earn in future. So basically conservatism says playing safe. तो अब इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो आपने अपने कॉस्ट को, अपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया है, बेसिकली उसकी वजह से मेरा जो अकाउंट्स रिफ्लेक्ट करेगा फाइनेंशियल पोजीशन को, वो सही रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड that because of using the accounting principles, that is concepts and conventions, the results which are getting reflected is not correct, and so this actually acts as the limitation of accounting. Now the next doubt is point number 3, based on historical cost. मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, they are shown at a price at which it has been purchased, that is the purchase price minus your depreciation that is getting charged every year, right? तो ये इस वैल्यू पे मेरे फिक्स्ड एसेट्स को शो किया जाता है, and that is why this is called historical cost. तो अब क्योंकि मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स की करंट मार्केट प्राइस को यूज करके बैलेंस शीट नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी पुरानी प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन ही यूज करके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. सो द रिजल्ट व्हिच द बैलेंस शीट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट is not correct. That means we will not be able to estimate the true financial position of our organization, and so it is also a limitation. Okay, now the next point is personal judgment. First point मैंने already बता दिया है, so I'm not explaining it again. पर्सनल जजमेंट मैं बता देती हूँ आपको. पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है, मैंने बताया आपको कि अकाउंट्स बनाने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं. जैसे मैंने कहा डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अभी मैं ये बोल रही हूँ, आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चैप्टर है और इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर अकाउंट्स को बनाने के लिए अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं, तो बेसिकली ये अकाउंटेंट को एक ऑप्शन देता है कि आप जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं उसमें से यूज करके कोई भी मेथड सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके अपना अकाउंट्स प्रिपेयर कीजिए. तो अब क्योंकि हर मेथड से जब आप अकाउंट बनाएंगे जो वो डिफर करेगा दूसरे मेथड से, तो आपके रिजल्ट में भी थोड़ा फर्क आता है. बहुत ज्यादा का फर्क नहीं आता, बट फर्क रहता है रिजल्ट्स में. सो बिकॉज ऑफ दैट the use of personal judgment by the accountant is actually making the result of our organization vary, right? And because of that variation the results become incomparable. अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अकाउंटेंट ने एक साल यूज किया एक मेथड को
अगले साल यूज किया अलग मेथड को, तो क्या आप 2 साल का रिजल्ट आपस में कंपेयर कर पाएंगे कि आपने कितना इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है प्रॉफिट को? नहीं। सिमिलरली आप इंटर और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द चेंज इन मेथड which the accountant is capable of doing at any point of time. So because of this option wherein the accountant can use his personal judgment, ये आपके अकाउंटिंग रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर देता है, मतलब वेरी करता है. ओके, next doubt is the sixth point. Okay, so what is the sixth point? Let me just go through it. So sixth point is saying depicts unrealistic information. मैंने अभी आपको बताया बच्चे कि जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसके अंदर जो हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, whether it is a fixed asset which is used on, which is getting reflected in historical cost, या फिर हम बात कर रहे हैं अपने स्टॉक की जिसको मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less. तो जब मैं ये सारे तरीकों को यूज करके मेरे अकाउंट्स में वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो ऑफ कोर्स जो मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है बैलेंस शीट के अंदर वो रियलिस्टिक नहीं है. क्योंकि अगर वो रियलिस्टिक होती तो मैं अभी जो करंट वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है मार्केट में, मैं उसको लेकर अपने अकाउंट्स बनाती, जो कि मैं नहीं कर रही, राइट? तो ये भी मेरा लिमिटेशन बन जाता है. ओके, next is, ma'am, as a user, like potential investor, if I know the accounting information is not correct, then how can I trust it? Exactly बच्चे, आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, आपको ये पता है कि अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होते हैं वो सारे इस तरीके के प्रिंसिपल्स को बेस करके बनाया जाता है. तो इसीलिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमेशा आपकी अनरियलिस्टिक रहेगी. अनरियलिस्टिक मतलब हम ऐसा कह सकते हैं उसको कि हम हमेशा उसको कम शो करते हैं, राइट? तो कम शो कर रहे हैं अगर, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दैट हमारा वैल्यू कहीं ना कहीं कम रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो कम रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स कि इन एग्जिस्टेंस उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा है. तो आप अपना डिसीजन इस बेसिस पे लेंगे कि जो वैल्यू आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है करंटली वो अनरियलिस्टिक तो है मगर वो कम की साइड है. दैट मीन्स आप इन्फ्लेट नहीं कर रहे वैल्यूज को, आप कम करके दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग योर कंजर्वेटिव अप्रोच, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. तो आप अपनी जो वैल्यूज को कम दिखाते हैं. दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करती हूँ तो जो इसकी वैल्यू है वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उससे ज्यादा ही है एज ऑफ नाउ. सो इन दैट केस I can always invest based on based on the information which the financial statement is reflecting, right? So you can trust it because it is getting undermined and it is not getting overvalued, right? So there's a difference between the two. Okay, फर्स्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो अब मैं फर्स्ट पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. there's फर्स्ट पॉइंट में ही कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस भी थे तो वो भी मैंने बता दिया है. And then there's a doubt for what is window dressing, what is the meaning of window dressing, and what is point number 5? Explain point number 5. Okay, okay, पहले मैं विंडो ड्रेसिंग बता देती हूँ क्या होता है. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे, ओके लेट्स टेक इट सिंपल एग्जांपल. आप कभी मार्केट जाते हैं और आपने देखा होगा कि शोरूम्स में अक्सर बहुत कुछ ऐसा लगा हुआ होता है जिससे कि वो बहुत अट्रैक्ट करे लोगों को कि लोग अंदर आए चीजें परचेज करें. सो हम वो जो बाहर से लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है, ये वैरायटी अवेलेबल है, व्हाट आर वी डूइंग? We are basically trying to attract, so that is called window dressing. Similarly, अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को भी मैं ऐसे ही अगर ग्लैम अप करूं, अगर ऐसे ही ड्रेसअप करूं और या फिर ऐसे कहूं कि ऐसे ही मैनिपुलेट करूं जिससे कि लोग मेरी इंफॉर्मेशन को देखकर मुझ में इन्वेस्ट करना चाहें, राइट? मुझे लोन प्रोवाइड करना चाहें, तो what am I going to do for that? I am going to window dress my account. That means I'm going to bring on certain changes up and down in the expenses, in the income, in the value of in the values which are getting reflected in my financial account, final accounts, so that people who are going to use it is basically going to get attracted for
satisfying or for serving their respectable needs, right? So for that purpose, what I'm doing with my financial statement is called window dressing. Window dressing within a permissible limit ethical होती है, क्योंकि वो परमिट की जाती है, राइट? जिससे कि आप अपने इन्वेस्टर्स को, आप अपनी पार्टीज इंटरेस्टेड को अट्रैक्ट कर सके, मगर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट इट इज ट्रीटेड लाइक अ फ्रॉड, राइट? तो विंडो ड्रेसिंग भी उतनी ही की जाएगी जितना कि अलाउड है या जितना कम से कम जरूरी हो. ओके, there is a doubt in fifth point, so I'll just show the fifth point. But before moving on to the fifth point, let me take up the last doubt, and that is land is a fixed asset, but it does not, the value doesn't necessarily depreciate. Very good, खुशी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. लैंड ही अकेली एक ऐसी एसेट होती है, फिक्स एसेट होती है, जो कि एक एक्सेप्शन होती है. एक्सेप्शन मतलब वो आम फिक्स एसेट की तरह नहीं होती. यानी कि लैंड और बिल्डिंग हम मान के चलेंगे वो एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, मगर अब अकाउंट्स में जब आप इसे शो करते हैं बच्चे, तो अकाउंट्स में हम इसकी वैल्यू बढ़ाकर कभी नहीं दिखाएंगे. इसकी वैल्यू हमेशा वही दिखेगी जो जिस प्राइस पे आपने इसको परचेज किया था, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर दैट यू आर चार्जिंग. इसीलिए जब आप अपने फिक्स एसेट को, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, जब हम उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो वो हमेशा कम दिखेगी, मगर जब आप उसे बेचेंगे तो वो ज्यादा की बिकेगी. तो जब आपको उसके बेचने पे आपको गेन होगा, so that is treated as gain on sale of land and building, right? So ये रहा आपका एक्सेप्शन, और इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं जब भी हम उस एसेट को बेचते हैं, तो उसको बेचने से जो हमको बेनिफिट होता है हम उसको एज अ गेन रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर, राइट? Meanwhile, before that, if we are not selling it, it is going to be shown at the historical value only, minus depreciation every year, which is going to be charged. Okay, there is one more doubt that I have received. Vardhan ने बताया है कि मैम gold is also one such type of asset. Very good Vardhan, but मैं आपको बताना चाहूंगी कि gold हमारा fixed asset नहीं होता है. Gold हमारी investment होती है, and investment is another category of asset, right? So गोल्ड अगर आप परचेज करते हैं, so that is not going to be used for the purpose of running an organization, but it is going to be used as an investment, जिसमें आपने पैसा लगाया so as to earn some additional income whenever that you want to sell it. तो जैसे भी आपको लगेगा कि गोल्ड की आपको बेचने ही जरूरत है, आप बेचना चाहते हैं, so you can always derive gain from it. So that is an investment. Okay, this is going to time out. Let's reconnect for 10 more minutes. Let's take up some more doubts and then we'll conclude the class today. Okay, so let's meet again and then I'll solve the fifth point also, right? So let's meet.